Hello friends, in last lecture we have seen the derivatives of standard functions and shortcuts. In this lecture we will discuss few MCQs based on the standard rules and shortcuts also. Before moving to examples, let us see few properties of derivatives. मित्रांनो डेरिव्हेटिव्हचे एक्झाम्पल्स बघण्यापूर्वी आपण काही प्रॉपर्टीज बघूयात. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इनटू फंक्शन इट इज गिवन बाय constant into f dash x. If constant is a multiplier to any function, then while finding derivative, we keep constant as it is. Take the derivative of that function, which is f dash x. अगर कांस्टेंट मल्टीप्लायर रहता है तो डेरिवेटिव निकालते समय कांस्टेंट को वैसा ही रखिए, वो कांस्टेंट जिसको मल्टीप्लायर है उसका डेरिवेटिव निकालिए. दिस इज द थिंग. एग्जाम्पल देखिए, डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और मल्टीप्लायर है, तो डेरिवेटिव निकालते समय 2 को वैसा ही रखिए. sin x का डेरिवेटिव होता है cos x. विल टेक वन मोर सैंपल हियर. डेरिवेटिव ऑफ -4 log x. -4 is a constant and multiplier. We keep it as it is. The derivative of log x is 1 upon x. Okay. Next property, derivative of a function plus or minus constant. अगर कांस्टेंट सेपरेट रहता है तो उसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली जीरो है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो. एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो. वेल लुक हियर सैंपल. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 2. इसमें साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है प्लस 2 का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा. वेल विल टेक वन मोर सैंपल. रूट एक्स माइनस 4 का डेरिवेटिव. Derivative of root x is given by 1 upon 2 root x and derivative of minus 4 is 0. Okay. If constant is separate, then its derivative is given by 0. Further, derivative of u plus or minus v. इसका मतलब अगर दो फंक्शंस के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन रहता है तो while finding derivative we find the separate derivatives. u का डेरिवेटिव अलग से प्लस और माइनस v का डेरिवेटिव अलग से निकालते हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. सैंपल. सपोज वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस tan x. इट इज इक्वल टू, देयर एग्जिस्ट 2 टर्म्स एंड देयर इज एडिशन बिटवीन 2 टर्म्स, सो वी कैन सेपरेट द डेरिवेटिव्स. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, बीच में प्लस है तो प्लस, tan x का डेरिवेटिव sec square x. सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके. नाउ फर्स्ट वन, derivative of x raised to n plus 3 upon x is equal to, we know that the derivative of x raised to n is given by n into x raised to n minus 1 and derivative of 1 upon x is given by minus 1 upon x square. We keep the 3 as it is. 3 is a constant and multiplier. We keep 3 as it is. Derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. So its derivative becomes minus 3 upon x square. And derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. So option C is correct. We'll move to the next one. Derivative of 2 root x plus e raised to 2x is equal to. So friends, 2 keep it as it is. रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में हम लोगों ने देखा था रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस e raised to 2x का डेरिवेटिव होता है e raised to 2x into 2. Well, so we cancel this 2 and 2. So the answer will be 1 upon root x plus 2 e raised to 2x. It is in option B. So option B is correct. Now the third one, derivative of a raised to x plus log x is equal to. We know that a raised to x, its derivative is given by a raised to x into log a and the derivative of log x is 1 upon x. So it is in option A. Further, fourth one, derivative of log x to the base a. So first of all we separate the base here. Log x to the base a can be written as log x divided by log a. Now its derivative. While finding the derivative we keep denominator log a as it is because it is a constant. log a constant है तो उसे धक्का मत लगाओ. log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x. मित्रांनो log x चं डेरिवेटिव असतं 1 upon x. So this is your answer, 1 upon x log a. It is in option C. तो option C को हम लोग टिक करते हैं. Now number 5, derivative of sin 2x plus cos 3x is equal to.
we know that derivative of sin kx is cos kx into k. So derivative of sin 2x is given by cos 2x into 2. Cos 2x into 2. It is in option C as well as in option D. Now derivative of cos is minus sin, and derivative of cos 3x is given by minus sin 3x into 3. It is in option C. So option C is correct. Now question number 6. Derivative of tan x plus cot x is equal to tan x, its derivative is sec square x, and derivative of cot x is minus cosec square x. So option A is correct. All the examples are based on the simple table of derivative. Derivative of sec x is given by sec x into tan x. Next example, derivative of sin inverse x plus tan inverse x is equal to. So the rule says that derivative of sin inverse x is 1 upon square root 1 minus x square, and derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So it is in option B. So option B is correct. Next one, if y is equal to 3x raised to 4 minus cos x plus 3 log x, then dy by dx is equal to. While finding dy by dx, we keep this 3 as it is into derivative of x raised to 4 is given by 4x cube. Further minus derivative of cos x is minus sin x, so it becomes minus becomes plus sin x. Further plus 3, keep it as it is, into derivative of log x is given by 1 upon x. So this is your answer. 4 into 3 comes 12x cube plus sin x plus 3 upon x. It is in option C. So option C is correct. Next one, if y is equal to so and so, then dy by dx is equal to how much? Look here. So the derivative of x raised to 10 is 10 into x raised to 9 with the help of the standard rule. Derivative of x raised to n is given by n into x raised to n minus 1. So derivative of x raised to 10 is 10 into x raised to 9. Further plus 10 raised to x gives you the derivative as 10 raised to x into log 10, because the standard rule says that the derivative of a raised to x is given by a raised to x into log a. So the derivative of 10 raised to x is given by 10 raised to x into log 10. Further, e raised to x gives you the derivative as a raised to x. So this is your answer. It is in option B. So option B is correct. Next one, if y is equal to a raised to x plus x raised to a plus a raised to a, then dy by dx is equal to. Look here, x raised to a, it is looking like x raised to n. Its derivative is n into x raised to n minus 1. So derivative of x raised to a is given by a into x raised to a minus 1. Further, derivative of a raised to x, it is a raised to x into log a. Okay, so friends, a is a number constant, and a raised to a also becomes a number constant, and the derivative of constant is equal to how much? 0. So the derivative of a raised to a gives you 0. It means only the terms remaining is a into x raised to a minus 1 plus a raised to x into log a plus 0. So it is in option A. So option A is correct. Now the next one, if y is equal to log x to the base 5 plus log 5 to the base 5 plus x raised to 5, then dy by dx is equal to. Log x to the base 5 can be written as log x divided by log 5 with the help of laws of logarithms, plus log 5 to the base 5 is given by 1. We know that log a to the base a is 1. So log 5 to the base 5 is 1. Further, plus we keep that x raised to 5 as it is. So this is y is equal to. Now find dy by dx. Taking derivative, dy by dx is equal to log x, its derivative gives you 1 upon x, and this log 5 is constant and multiplier, we keep it as it is. log 5 यहाँ पे constant है, multiplier है, उसे जैसा है वैसे लिखते हैं 1 upon log 5 as it is, and the derivative of log x is 1 upon x. Okay, further plus derivative of 1 is 0, and x raised to 5 का derivative होता है 5 into x raised to 4. So this is your answer. 1 upon x log 5 plus 5 into x raised to 4. It is in option B. So option B is correct. Now the 13th one, if y is equal to e raised to log x, then dy by dx is equal to. So friends, we all know that in laws of logarithms we have seen one result, that e to the power log star
e इज इक्वल टू स्टार। ई रेस टू लॉग स्टार का मतलब है स्टार। हे लॉज ऑफ लॉगेरिथम मध्ये रूल आहे मित्रांनो। ईच्या डोक्यावर जर लॉग स्टार असेल तर त्याचं मिनिंग हे स्टार असं समजावं। फॉर एक्झाम्पल ई रेस टू लॉग एक्स मतलब एक्स, ई रेस टू लॉग 2x मतलब 2x, ई रेस टू लॉग साइन एक्स म्हणजे साइन एक्स वगैरे वगैरे। ओके, नाउ इन दिस केस y इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग एक्स इज दैट। So y is equal to e raised to log x. What it means? e raised to log star का मतलब star. So e raised to log x मतलब x. Okay. Now finding the derivative here. dy by dx is equal to x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। मित्रांनो x का डेरिवेटिव 1 असतं। So this is your answer. 1 is in option C. So option C is correct. Number 14. If y is equal to e raised to 2 log x, then dy by dx is equal to, look here, y is equal to e raised to 2 log x. With the help of laws of logarithm, it can be written as e raised to log x raised to 2. m into log x is equal to log x raised to m in laws of logarithms. So friends, we can shift this m to the power of x. यहाँ पे जो m है ना, वो m हम लोग x के पावर पे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा लॉज ऑफ लॉगरिथम में रूल है। ओके, विद द हेल्प ऑफ द सेम रूल हम लोगों ने क्या किया कि 2 को x के पावर पे लिखा है। सो इट कम्स e रेस टू log x स्क्वायर। नाउ रिसेंटली वी हैव सीन दैट e रेस टू log स्टार का मतलब क्या होता है स्टार। सो व्हाट अबाउट e रेस टू log x स्क्वायर देन? अगर e रेस टू log स्टार का मतलब स्टार है तो e रेस टू log x स्क्वायर का मतलब कितना हुआ x square. Okay, so in this way we got y is equal to simply x square. Now find derivative. dy by dx is equal to x square का डेरिवेटिव होता है 2x. So 2x be your answer which is in option A. So option A is correct. Next one, if y is equal to e raised to minus log x, then dy by dx is equal to, look here, y is equal to e raised to minus log x is there. Once again, with the help of laws of logarithms, it can be written as e raised to log x raised to minus 1. So friends, here negative sign indicates negative 1 is there. मित्रांनो या ठिकाणी निगेटिव्ह चिन्ह आहे, याचा अर्थ काय असतं तिथं -1 असतं. So once again, with the help of the same result, we replace this -1 to the power of x. इथलं -1 जे आहे ते आपण x च्या पॉवरला घेऊन जायचं. Again, it is looking like e raised to log star, and e raised to log star is star. So e raised to log x raised to -1 का मतलब होता है x raised to -1. So friends, x raised to -1 means 1 upon x. Okay, so therefore we got y is equal to 1 upon x. Now take derivative. dy by dx is equal to 1 upon x चं डेरिव्हेटिव्ह आपण स्टँडर्ड रूल मध्ये पाहिलेलं आहे. इट इज -1 upon x square. So the answer is -1 upon x square. It is in option D. So option D is correct. Next question, if y is equal to e raised to x log 2. Again, the parallel example is there. y is equal to e raised to x log 2. ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल है. सो इसको लॉज ऑफ लॉगरिथम के हिसाब से हम लोग कैसा लिखेंगे, e टू द पावर log, we shift this x to the power of 2 raised to x. Well, so once again it is looking like how e raised to log star. Okay, so e raised to log star का मतलब स्टार है, तो e raised to log 2 raised to x का मतलब कितना हुआ 2 raised to x. So in this way we get y is equal to 2 raised to x. Now find the derivative. dy by dx is equal to 2 raised to x का डेरिवेटिव होता है 2 raised to x into log 2, because the standard rule is of a raised to x. a raised to x का डेरिवेटिव कितना होता है a raised to x into log a. So 2 raised to x का डेरिवेटिव 2 raised to x into log 2. So this is the answer, 2 raised to x into log 2. It is in option C. So option C is correct. Next question, if y is equal to e to the power a log x, then dy by dx is equal to, look here, y is equal to e to the power a log x. So with the help of once again laws of logarithms, it can be written as e raised to, we replace this a to the power of x log x raised to a. once again e raised to log star का मतलब स्टार है, तो इसका मतलब कितना हुआ x raised to a. okay,
In this way we obtained y is equal to simply x raised to a. अब डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू ए का डेरिवेटिव होता है a इंटू एक्स रेस टू a माइनस वन. सो दिस इज योर आंसर. इट इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Next one, if y is equal to e raised to x log a, again the parallel example, y is equal to e raised to x log a. So it is equal to e raised to log a raised to x. Further it is looking like e raised to log star. It is equal to star. So what about e raised to log a raised to x then? It is equal to a raised to x. So in this way we get y is equal to a raised to x. Now find the derivative here. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है a रेस टू एक्स इंटू लॉग a. सो दिस इज योर आंसर, a रेस टू एक्स इंटू लॉग a. इट इज इन ऑप्शन a. सो ऑप्शन a को टिक कीजिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू e रेस टू एक्स देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, विल राइट हियर y इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू e रेस टू x. So friends, we know that log AB is given by log A plus log B in laws of logarithms. log AB ची किंमत आपण log A plus log B असं लिहू शकतो. With the help of this, it is looking like the same log AB. इसको ऐसा लिखते हैं log AB. log AB मतलब log A plus log B. इसका मतलब कितना हुआ? It is log X plus log e raised to x. Now once again y is equal to log x, keep it as it is, plus log e raised to x को x log e ऐसा लिख सकते हैं. ओके, सो रिसेंटली वी हैव सीन दैट log x raised to m का मतलब m log x, तो log e raised to x को x into log e ऐसा लिखते हैं. फर्दर we know that the value of log e is equal to 1 in laws of logarithms. So in this case y becomes log x प्लस x इंटू वन मतलब x. ठीक है, नाउ टेक द डेरिवेटिव. आता डेरिवेटिव काढा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, व्हाट अबाउट डेरिवेटिव ऑफ log x? इट इज 1 अपॉन x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x गिव्स यू 1. सो दिस इज योर आंसर, 1 अपॉन x प्लस 1. इट इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी को टिक करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x cube into e raised to 3x then dy by dx is equal to, again the parallel question is there. With the help of laws of logarithms y can be written as log ab को कैसा लिख सकते हैं? log a plus log b, log x cube plus log e raised to 3x. Getting clear? So log ab means log a plus log b. Further again laws of logarithm says that we can write 3 here. It means 3 into log x plus 3x comes here, 3x into log e. Further log e is how much? Recently we have seen that the value of log e is 1. So y becomes 3 into log x plus 3x into 1 matlab 3x. Well, now we find the derivative. dy by dx is equal to, वी कीप दिस 3 एज इट इज. 3 ला धक्का लावू नका. log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3. स्टँडर्ड रूल, 3x चं डेरिवेटिव 3 असतं. सो दिस इज द आन्सर, 3 बाय x प्लस 3. इट इज इन ऑप्शन बी. 3 बाय x प्लस 3. इट इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी ला टिक करायचं. ओके, so in this way we can solve the simple examples based on the standard results of the derivatives. Now let us see examples based on derivatives of composite functions. मित्रांनो, आता composite functions वरती derivatives कसे काढायचे हे आपण पाहूया. हम लोगों ने स्टार के फॉर्मेट में कुछ रूल्स लर्न किए थे, वो सारे रिजल्ट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं. ओके, लुक एट द नंबर 21. If y is equal to sin square x then dy by dx is equal to. सो फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर एक्स इज लुकिंग लाइक स्टार स्क्वायर. किसी का तो स्क्वायर है. स्टार स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 स्टार इंटू स्टार डैश. हम लोगों ने देखा है इन द बेसिक्स. स्टार स्क्वेअरचं डेरिवेटिव 2 स्टार इंटू स्टार डैश असतं. सो स्टार मतलब साइन एक्स, स्क्वायर मतलब स्क्वायर हुआ, तो उसका डेरिवेटिव 2 स्टार इंटू स्टार डैश ऐसा लिखते हैं. तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इस हिसाब से कैसा हुआ फिर?
टू इंटू स्टार मतलब साइन एक्स इंटू स्टार डैश मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव. साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. ओके, सो दिस इज द आन्सर. मित्रांनो, साइन स्क्वेअर एक्सला स्टार स्क्वेअर असं कम्पेअर करा. स्टार स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह टू स्टार इंटू स्टार डॅश असं असतं. या एक्झाम्पलमध्ये स्टार म्हणजे साइन एक्स, स्क्वेअरला स्क्वेअर लेवल झालं. याचं डेरिव्हेटिव्ह टू स्टार इंटू स्टार डॅश असं लिहायचं असतं. तर साइन स्क्वेअर एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कसं लिहिलो आपण? टू साइन एक्स, टू स्टार म्हणजे टू साइन एक्स इंटू स्टार डॅश म्हणजे साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. ओके, सो दिस इज युअर आन्सर. मित्रांनो, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. इन ट्रिग्नोमेट्री वी हॅव सीन द रिझल्ट दॅट 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये हे रिझल्ट आपण पाहिलं होतो. सो 2 sin x इंटू cos x is equal to sin 2x. So sin 2x be your answer which is in option C. तो ऑप्शन सी को हम लोग टिक करते हैं. वेल, नाउ नंबर 22. इफ y is equal to sin cube x then dy by dx is equal to. सो फ्रेंड्स, साइन क्यूब एक्स को हम लोग किसी का तो क्यूब है ऐसे कंपेयर करते हैं, स्टार क्यूब. तो स्टार क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3 स्टार स्क्वायर इनटू स्टार डैश, राइट. सो स्टार मतलब कितना हुआ? साइन एक्स. क्यूबला क्यूब मैच होता है. स्टार मतलब साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं. तो साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव कैसे हुआ? साइन क्यूब एक्सचं डेरिवेटिव कसं येईल मित्रांनो? 3 इंटू स्टार मतलब साइन एक्स, स्टार स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू स्टार डैश मतलब स्टार का डेरिवेटिव. इन दिस केस स्टार मीन्स साइन एक्स. ओके, क्यूबला क्यूब मैच होता है. स्टार म्हणजे साइन एक्स, स्टार डैश मीन्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. सो दिस इज द आंसर. 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स. इट इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी ला टिक करो. नंबर 23. इफ y इज इक्वल टू cos square x then dy by dx is equal to. नंबर 23. अगेन इट इज लुकिंग लाइक cos square x बोले तो इसे हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? स्टार स्क्वायर. स्टार स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2 स्टार इंटू स्टार डैश. तो व्हाट अबाउट cos square x का डेरिवेटिव देन? इन दिस एग्जाम्पल स्टार मतलब कितना हुआ? cos x. तो इसका डेरिवेटिव 2 स्टार इंटू स्टार डैश के हिसाब से 2 इंटू स्टार मतलब cos x इंटू स्टार डैश मतलब cos x का डेरिवेटिव. cos x का डेरिवेटिव कितना आता है? मायनस साइन एक्स. मित्रांनो, cos x चं डेरिवेटिव हे मायनस साइन एक्स असतं. सो इट इज इक्वल टू वन्स अगेन माइनस एज इट इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अभी अभी देखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा. तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन 2x. सो दिस इज योर आंसर, माइनस साइन 2x. माइनस साइन 2x. इट इज इन ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी को टिक करो. नाउ नंबर 24. y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू. नंबर 24. इट इज अगेन लुकिंग लाइक किसी का तो क्यूब है, स्टार क्यूब. इसका डेरिवेटिव होता है 3 स्टार स्क्वायर इंटू स्टार डैश. तो dy बाई डी एक्स इन दिस केस कितना हुआ? कॉस क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 3 स्टार स्क्वायर इंटू स्टार डैश के हिसाब से 3 इंटू स्टार मतलब कॉस एक्स, स्टार स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स इंटू स्टार मतलब कॉस एक्स एंड स्टार डैश मतलब उसका डेरिवेटिव. कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स. ओके, सो दिस इज द आंसर. -3 cos square x into sin x. -3 cos square x into sin x. It is in option D. So option D is correct. Next question, number 25. Y is equal to x square plus 4 bracket cube then dy by dx is equal to. Once again it is looking like किसी का तो क्यूब है, मतलब स्टार क्यूब. अगेन उसका डेरिवेटिव हम लोगों को 3 स्टार स्क्वायर इंटू स्टार डैश ऐसा लिखना होता है. नंबर 25. 3 स्टार स्क्वायर इंटू स्टार डैश के हिसाब से आंसर लिखते हैं. 3 इंटू स्टार मतलब कितना हुआ? ब्रॅकेटेड क्वांटिटी. लुक हियर, वी कंपेअर इट विथ स्टार क्यूब. कोणाचा तरी क्यूब आहे. कोणाचा क्यूब आहे? एक्स स्क्वेअर प्लस 4चं, म्हणजे ते काय झालं? स्टार झालं. तर उत्तर कसं लिहायचं असतं? 3 स्टार स्क्वेअर इंटू स्टार डॅश. 3 इंटू स्टार म्हणजे काय झालं? ब्रॅकेट म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस 4. स्टार स्क्वेअर म्हणजे त्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर प्लस 4चा स्क्वेअर इंटू स्टार डॅश. याचा अर्थ काय सांगितलं तुम्हाला? स्टारचं डेरिवेटिव. इसका मतलब एक्स स्क्वेअर प्लस 4 का डेरिवेटिव.
4 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x. ओके, सो दिस इज द आंसर. सो वन सेकेंड देखिए, स्टार क्यूब का डेरिवेटिव 3 स्टार स्क्वायर इंटू स्टार डैश मतलब इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 का 0. सो टोटल आंसर बिकम्स 3 इंटू 2 मतलब 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर. 6x into x square plus 4 bracket square is the answer. It is in option A. So option A is correct. Number 26. Y is equal to sine inverse of root x, then dy by dx is equal to. Friends, it is looking like sine inverse star. Sine inverse star जिसका डेरिवेटिव लिखा है हम लोगों ने, इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस स्टार स्क्वायर इनटू स्टार डैश. इन दिस केस स्टार मतलब कितना हुआ रूट एक्स, तो इसके जैसा हम लोगों को डेरिवेटिव लिखना होगा. तो साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव बोलिए, इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस स्टार स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर. मित्रांनो, स्टार स्क्वेअर याचा अर्थ रूट एक्सचं स्क्वेअर. रूट एक्सचं स्क्वेअर केल्यानंतर रूट कॅन्सल होतं, एक्स येतं. फर्दर इनटू स्टार डैश लिखना होता है. स्टार डैश मतलब स्टार का डेरिवेटिव. यहाँ पे स्टार मतलब कौन है रूट एक्स. तो बोलिए रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ 1 अपॉन 2 रूट एक्स. स्टैंडर्ड रूल्स में हम लोगों ने देखा है रूट एक्स का डेरिवेटिव इट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सो दिस इज योर आंसर 1 upon 2 root x into root 1 minus x. It is in option B. तो ऑप्शन B को टिक कीजिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ y is equal to square root of sin x, then dy by dx is equal to. Number 27. y is equal to root sin x is looking like root star. मित्रांनो, त्याला रूट स्टारशी कंपेअर करायचं. रूट स्टार का डेरिवेटिव होता है 1 upon 2 रूट स्टार into star dash. Well, so what about then root sin x, its derivative is given by 1 upon 2 root star मतलब कितना हुआ sin x into star dash means sin x चं डेरिव्हेटिव्ह इट इज cos x. रूट स्टारशी कंपेअर केल्यानंतर स्टार म्हणजे sin x असं मिळतं, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 रूट स्टार इंटू स्टार डॅश असं लिहायचं असतं. इट इज 1 अपॉन 2 रूट स्टार मतलब साइन एक्स एंड स्टार डैश मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. सो दिस इज योर आंसर कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स. इट इज एन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नंबर 28. y इज इक्वल टू ई रेज टू साइन एक्स, देन dy बाय dx इज इक्वल टू. मित्रांनो, हे तुम्हाला ई रेज टू स्टार असं दिसतं. ई रेज टू स्टार चं डेरिवेटिव्ह असतं ई रेस टू स्टार इंटू स्टार डैश. ई रेस टू साइन एक्स ये ई रेस टू स्टार जैसा दिखता है, जिसका डेरिवेटिव ई रेस टू स्टार इंटू स्टार डैश ऐसा लिखते हैं. तो व्हाट अबाउट ई रेस टू साइन एक्स का डेरिवेटिव देन इट इज ई रेस टू स्टार मीन्स साइन एक्स इंटू स्टार डैश मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव जो कॉस एक्स होता है. सो दिस इज द आंसर e raised to sin x into cos x. It is in option C. तो ऑप्शन C is correct. अगला सवाल देखते हैं. If y is equal to log x bracket square, then dy by dx is equal to. Number 29. So friends, once again it is looking like किसी का तो स्क्वायर स्टार स्क्वायर. स्टार स्क्वायरचं डेरिव्हेटिव्ह कसं असतं 2 स्टार इंटू स्टार डॅश. बरोबर है. लॉग एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर ये स्टार स्क्वायर जैसा दिखता है, जिसका डेरिवेटिव हम लोगों को 2 स्टार इंटू स्टार डैश ऐसा लिखना होता है. तो यहाँ पे लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर का डेरिव्हेटिव्ह बोलिए. मित्रांनो, लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह या सूत्रानुसार तुम्हाला सांगायचं आहे. 2 इंटू स्टार म्हणजे कोण झालं लॉग एक्स, 2 इंटू लॉग एक्स इंटू स्टार डॅश म्हणजे लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह. लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असतं 1 अपॉन एक्स. सो दिस इज युअर आन्सर 2 log x into 1 upon x. It is in option B. So option B को टिक करो. Next one, if y is equal to log of sin x, then dy by dx is equal to. log sin x को हम लोग log स्टार से कंपेअर करते हैं. मित्रांनो, जर log x असेल तर नो प्रॉब्लेम एट ऑल. x सोडून दुसरं काही जरी असलं ना तर त्याला स्टार ट्रीट करावं.
तो log sin x को हम लोग log स्टार से कंपेयर करते हैं, तो log स्टार का डेरिवेटिव कैसा है, 1 अपॉन स्टार इंटू स्टार डैश. So in this case, the derivative of log sin x is given by, बोलिए, it is 1 upon star means what, sin x. log स्टार मतलब स्टार म्हणजे काय झालं, sin x झालं. 1 अपॉन स्टार म्हणजे 1 अपॉन sin x इंटू स्टार डॅश म्हणजे sin x चं डेरिव्हेटिव्ह जे किती असतं, cos x असतं. ओके, एंड फर्दर cos x अपॉन sin x मतलब कितना, ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट सेज दैट cos x अपॉन sin x इज cot x, बरोबर है. So cot x is your answer. It is in option A. So option A is correct. Next question is, if y is equal to log of cos x, then dy by dx is equal to, once again it is looking like log star. Its derivative is 1 upon star into star dash. So the derivative of log of cos x is given by 1 upon star मतलब cos x into star dash means derivative of cos x. cos x चं derivative हे असतं minus sin x. Well, now in trigonometry, what is the meaning of sin x upon cos x? It is no doubt tan x. So including this minus, it comes minus tan x as an answer. Okay, मित्रांनो, अशा प्रकारे तुमचं उत्तर मायनस tan x येतं, जे ऑप्शन डी मध्ये आहे. तर ऑप्शन डी ला टिक करायचं. Number 32, if y is equal to log of log x, then dy by dx is equal to, once again it is looking like log star. log star, यहाँ पे स्टार मतलब कितना हुआ, log x. ओके, तो इस हिसाब से हम लोगों को आंसर लिखना है. 1 अपॉन स्टार मतलब कितना हुआ, 1 अपॉन log x इंटू स्टार डैश बोले तो log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. सो दिस इज द आंसर. इट इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए को हम लोग टिक करते हैं. वेल, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इफ y is equal to square root of x square plus a square, then dy by dx is equal to, it is looking like root star. root of x square plus a square is comparable with root star. Number 33, its derivative is given by 1 upon 2 root star into star dash. Okay, so root x square plus a square, its derivative is given by 1 upon 2 root स्टार बोले तो कितना हुआ यहाँ पे, x square plus a square into what about star dash. देन स्टार डैश मतलब x square plus a square का डेरिवेटिव. x square का डेरिवेटिव होता है 2x एंड a square का डेरिवेटिव तो 0 होता है बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टंट. मित्रांनो, x squareचं डेरिवेटिव 2x ला, a square कॉन्स्टंट असल्या कारणानं त्याचा डेरिवेटिव 0 होता है, 0 होता है, ते लिहायची काही गरज नाही. फर्दर 2 and 2 get cancel. The final answer will be x upon square root x square plus a square. So friends, x upon square root x square plus a square is your answer, which is in option B. So tick mark option B here. Further, number 34, if y is equal to e raised to x, then dy by dx is equal to, it is looking like e raised to star, isn't it? e raised to something, e raised to star, जिसका डेरिवेटिव होता है e raised to star into star dash. तो व्हाट अबाउट e raised to star मतलब कितना हुआ इस एग्जांपल में, e raised to x. ओके, e raised to x ज्याचं डेरिवेटिव आपल्याला या सूत्राने सांगायचं असतं. बोला, इट इज e raised to स्टार मतलब कितना हुआ, इंडेक्स पे जो है वो स्टार होता है, इट इज e raised to x इंटू स्टार डैश बोले तो स्टार का डेरिवेटिव, e raised to x का डेरिवेटिव कितना, अगेन इट इज e raised to x. सो दिस इज युअर आन्सर, e raised to x इंटू e raised to x. मित्रांनो, हे ऑप्शन बी मध्ये आहे. सो ऑप्शन बी को हम लोग टिक करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, देन dy by dx इज इक्वल टू, इट इज लुकिंग लाइक साइन स्टार. साइन स्टारशी ते कम्पेअर होत आहे. साइन एक्स असेल तर नो प्रॉब्लेम एट ऑल, एक्स सोडून दुसरं काही जर असेल तर त्याला स्टार ट्रीट करावं. इट इज कंपेरेबल विथ साइन स्टार. तो साइन स्टार का डेरिवेटिव कितना है, इट इज कॉस स्टार इनटू स्टार डैश, बराबर. तो व्हाट अबाउट साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव, स्टार बोले तो यहाँ पे लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं कॉस ऑफ, स्टार बोले तो लॉग एक्स
इंटू स्टार डैश का मतलब log x का डेरिवेटिव जो 1/x होता है. तर cos स्टार इंटू स्टार डॅश म्हणजे cos ऑफ log x इंटू 1/x असा आन्सर येतं, जो ऑप्शन डी में दिखता है. cos ऑफ log x डिवाइडेड बाय x. It is in option D, so option D is correct. Now there is a parallel question. If y is equal to cos of log x, then dy by dx is equal to number 36. Cos of log x can be comparable with cos star. So friends, the derivative of cos star is given by how much? It is minus sin star into star dash. असं त्याचं उत्तर असतं. cos ऑफ log x का डेरिवेटिव इस शॉर्टकट के हिसाब से आएगा माइनस साइन स्टार बोले तो कितना log x एंड स्टार डैश मीन्स हाउ मच 1/x. log x का डेरिवेटिव 1/x. So minus sin of log x into 1/x be the answer. It is in option A. So option A is correct. Now the next one, if y is equal to sin inverse x bracket square, then dy by dx is equal to number 37. No doubt friends, it is looking like किसी का तो स्क्वेअर, कुणाचा तरी स्क्वेअर आहे असं ते दिसतं. So it is star square. So what about derivative of star square? It is 2 star into star dash, isn't it? So what about derivative of sin inverse x bracket का स्क्वायर then? It is 2 into 2 स्टार का मतलब कितना होता है 2 sin inverse x into स्टार डैश मीन्स स्टार का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर. मित्रांनो, स्टार स्क्वेअरशी कंपेअर करा. हे एक्झाम्पल कुणाचं तरी स्क्वेअर आहे. स्टार स्क्वेअरशी कंपेअर केल्यानंतर तुम्हाला स्टार म्हणजे कोण सापडत आहे? साइन इनवर्स एक्स. याचं उत्तर आपल्याला असं लिहायचं असतं 2 स्टार इंटू स्टार डैश. इन दिस एग्जाम्पल स्टार बोले तो साइन इनवर्स एक्स हुआ, 2 स्टार बोले तो 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू स्टार डैश मतलब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. सो दिस इज योर आंसर. इट इज इन ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Now question number 38. If y is equal to e raised to m sin inverse x, then dy by dx is equal to. It is looking like e raised to star. e raised to m sin inverse x दिखने में e raised to star जैसा दिखता है, जिसका डेरिवेटिव e raised to star into star dash ऐसा लिखते हैं. So what about e raised to m sin inverse x का डेरिवेटिव then? e रेस टू m साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है e रेस टू स्टार मतलब e रेस टू m साइन इनवर्स x इनटू स्टार डैश मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ m साइन इनवर्स x, जिसमें m तो कांस्टेंट है, उसे धक्का मत लगाओ. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ y इज इक्वल टू e रेस टू m साइन इनवर्स x. इट मीन्स e रेस टू m साइन इनवर्स x को हम लोग क्या ट्रीट कर सकते हैं? y ट्रीट कर सकते हैं. ओके, सो योर आंसर विल बी my डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. my डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इट इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ y इज इक्वल टू e रेस टू 3x स्क्वायर, देन dy by dx is equal to नंबर 39. इट इज अगेन लुकिंग लाइक e रेस टू स्टार, जिसका डेरिवेटिव e रेस टू स्टार इनटू स्टार डैश ऐसा लिखना होता है. सो y इज इक्वल टू e रेस टू 3x स्क्वायर. सो e रेस टू 3x स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं e रेस टू स्टार मतलब 3x स्क्वायर इनटू स्टार डैश मतलब कितना हुआ 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, जिसमें 3 को धक्का मत लगाओ बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट एंड मल्टीप्लायर. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. 3 इंटू 2x मतलब 6x. 6x इंटू e रेस टू 3x स्क्वायर बी योर आंसर. इट इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Number 40. If y is equal to log of x square plus 2x plus 5, then dy by dx is equal to. So friends, you have observed that it is looking like log star. The derivative of log star is given by 1 star into star dash. तो इस हिसाब से log of x square plus 2x plus 5 का डेरिवेटिव it is equal to comparable with log star
स्टार मतलब कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, जिसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं 1 अपॉन स्टार बोले तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू स्टार डैश मतलब स्टार का डेरिवेटिव, याचं डेरिवेटिव वरती लिहायचं. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0. ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 एंड 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. वेल, so this is the answer. Final answer will be 2x plus 2 divided by x square plus 2x plus 5 असं तुमचं उत्तर येतं. 2x plus 2 divided by x square plus 2x plus 5. It is in option B. So option B is correct. Number 41. If y is equal to log of sec x plus tan x, then dy by dx is equal to. So friends, once again it is looking like log star, जिसका डेरिवेटिव 1 अपॉन स्टार इंटू स्टार डैश के हिसाब से हम लोगों को लिखना है. लॉग स्टार, ये सारा ब्रैकेट मतलब कितना होता है, स्टार होता है. 1 अपॉन स्टार मीन्स 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स इंटू स्टार डैश का मतलब होता है ब्रैकेट का डेरिवेटिव, स्टार का डेरिवेटिव, याचं डेरिवेटिव वरती लिहायचं, जिसमें सेक एक्स का डेरिवेटिव लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स. राइट मित्रांनो, लॉग स्टार में स्टार बोले तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स हुआ, 1 अपॉन स्टार बोले तो 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स हुआ, इंटू स्टार डैश का मतलब सेक एक्स प्लस टैन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखते हैं, जिसमें सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स टैन एक्स प्लस टैन एक्स का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स. नाउ सेक एक्स टैन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स में से हम लोग सेक एक्स कॉमन निकालते हैं, या दोन टर्म मधून सेक एक्स कॉमन काढा. सो इनसाइड द ब्रैकेट द रिमेनिंग टर्म इज टैन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स में से सेक एक्स कॉमन निकाला तो सेक एक्स बचेगा. ओके, डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स. सो लुक इट केयरफुली. Both the numerator sec x plus tan x and divided by sec x plus tan x get cancelled. Sec x be the final answer. Sec x असं तुमचं उत्तर येतं. It is sec x which is in option C. So option C को हम लोग टिक करते हैं. Now the next question number 42. If y is equal to log of sec x, then dy by dx is equal to. Again it is looking like log star. लॉग स्टार का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्टार इंटू स्टार डैश, तो लॉग सेक एक्स का डेरिवेटिव बोलिए इट इज 1 अपॉन स्टार म्हणजे सेक एक्स इंटू स्टार डैश बोले तो सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स. सो सेक एक्स गेट कॅन्सल. फायनल आन्सर विल बी टॅन एक्स. टॅन एक्स असं तुमचं उत्तर येतं. इट इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next question, if y is equal to sine of e raised to x, then dy by dx is equal to. Number 43. Y is equal to sine of e raised to x. It is looking like sine star, isn't it? And the derivative of sine star, we know that it is cos star into star dash. So what about the derivative of sine of e raised to x? In this case star बोले तो कंपेयर किया तो स्टार बोले तो कितना हुआ e raised to x. डेरिवेटिव बोलिए इट इज कॉस स्टार बोले तो e रेस टू एक्स इंटू स्टार डैश मीन्स स्टार का डेरिवेटिव, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स. सो दिस इज द आंसर. इट इज इन ऑप्शन सी, cos of e रेस टू एक्स इंटू e रेस टू एक्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Now look at the last question of this session. If y is equal to e raised to x bracket raised to n, then y is equal to e raised to x bracket raised to n can be written as e raised to nx. With the help of laws of indices, x raised to m bracket raised to n is given by x raised to mn. Okay, so e raised to x bracket raised to n is given by e raised to nx, and the derivative is given by dy by dx is equal to e raised to nx का derivative होता है e raised to nx into n. Okay, e रेस टू के एक्स डेरिवेटिव e रेस टू के एक्स इंटू के है स्टैंडर्ड रूल है, उस हिसाब से e रेस टू एन एक्स का डेरिवेटिव हुआ e रेस टू एन एक्स इंटू एन. इट इज इन ऑप्शन ए.
So option A is correct. In this way, we have seen the examples based on the derivatives of composite function. You can solve the parallel questions based on the same thing. Well, in the next lecture, we will see the derivatives of product and quotient. Thank you.